Ladies and gentlemen, this is Santosh Kumar Tiwari. Once again, I am there with you to share something new. This time, this is alcoholic economy. Before starting the topic, as the title suggests, you must be inferring. You may infer that I am going to speak something about the alcohol and its relationship with the Indian economy. Let me tell you that I am not going to speak only about the relationship of alcohol with the Indian economy, but also about the relationship with the society and stigma and taboos about alcohol and all the other things. But before starting the topic, actual topic, I want to tell you that I am not a pro-alcoholic person, and I'm in no way I'm going to, encourage the uses of the alcohol in any form. The history and the ancient literatures are replete with the uses of alcohol in some form or the other, and it has been shown that it has been the integral part of the humanity. I don't want to hit the controversy, but at the same time मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि ऋग्वेद में भी सोमरस नामक चीज़ का उल्लेख किया गया है, और उसमें ये भी बताया गया है कि इंद्र भगवान खुद ही सोमरस लेते थे ताकि वो इमोर्टल हो पाए। बैटल से पहले पीते थे क्योंकि उनमें शक्ति आ जाती थी। हिंदू प्रियस्ट पीते थे, बट इट इज़ नॉट गारंटेड कि सोमरस जो है वो अल्कोहल ही था। उसमें एक्सप्लेनेशन वेराइटी ऑफ एक्सप्लेनेशंस आर देयर, एंड देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अबाउट इट कि सोम नामक एक प्लांट था जो हिमालयाज में था, जो एक्सटिंक्ट हो गया, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. So as of now, I am not drawing any conclusion that सोमरस was actually alcoholic beverages. But एक जो हेब्रेयू बाइबल है उसमें जीसस क्राइस्ट के बारे में लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 2 में, which we will show it on the screen, कि उन्होंने he has produced copious amount of alcohol in Cana's marriage. These are some of the references. Now I want to share with you something about our values and culture of our society. हम हमेशा हर चीज़ों को प्रैक्टिकली ना लेके ऐसे क्यों सोचते हैं कि हम एवरीथिंग इज अ स्टिग्मा टैबू इन द सोसाइटी. भैया लिकर जो लेता है उसके बारे में लोग बोलते हैं, पीपल इन आम जनजीवन में हम चीज़ों को हमेशा कैरेक्टर से उसको रिलेट कर लेते हैं. अल्कोहल लेता है, ही इज़ अ बैड पर्सन. Everybody who proclaims himself as a good person of the society says that he becomes stigmatic towards a person who takes alcohol in any form. 1.5 महीने के लॉकडाउन में what is the Indian economic size? 2019 का यदि डेटा लिया जाए तो इंडियन इकोनॉमी का साइज $11.04 ट्रिलियन है, which comes यदि एक एवरेज 70 रुपीज़ का एवरेज लिया जाए तो it comes around 777 point something, almost 07 or odd dollars. And us Indian economy was not able to feed and manage the state of the affairs after the close down for 1.5 months. फिर क्या किया गया? सारे चीफ मिनिस्टर, कंट्री के चीफ मिनिस्टर फाइट करने लगे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भैया मुझे 7,000 करोड़ दे दो, मुझे 3,500 करोड़ दे दो, मुझे 6,000 करोड़ दे दो, और नहीं तो लीकर सब खोलने दो. अब बताइए, जिस चीज़ के बारे में हमारी सोसाइटी स्टिग्मेटेड रहती है, हमारी वैल्यूज ये कहती है कि भैया शराब पीना हराम है, उसी शराब से हमारी रोटी चलेगी, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलेंगे, हमारे हॉस्पिटल चलेंगे, लेकिन जो पीता है वो बड़ा हराम है, बेकार आदमी है, पैसे देगा, उसके बाद आके 400 रुपीज का लिकर खरीदेगा, और वो आई एम नॉट सिंपैथाइजिंग टूवर्ड्स द पीपल हु आर कंज्यूमिंग लिकर, बट व्हाट इज द एक्चुअली रियलिटी. आई वांट टू टॉक अबाउट बीइंग प्रैक्टिकल. 400 रुपये दे के लिकर खरीदता है और अंधेरे में जाके पार्क में टॉयलेट वाले जगह पे धीरे से वो दारू पीता है. There are 2 hazards. One is health hazard of that person, and the secondly that once he is paying and you have accepted कि 400 रुपये में ये लिकर दे दिया, तो भैया पैसे लिया है, उसको जगह भी दो, उसको रिस्पेक्ट भी दो, and accept some of the fault, devise a methodology कि वो उसके हेल्थ को जितना खराब ना करे उतना ही उसको बेचो. Why you are worrying only about the Indian economy and not about the health of the person?
you have to take care of both, and the society has to be practical. Number one, that it seems, मेरे को ऐसा लगता है, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं लगता कि हमारी वैल्यूज़ इम्प्रैक्टिकल हो गई है. कुछ कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा और हमें रेस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा. यदि पीता है तो ठीक है, पीता है. He should supposed to be taught that how much to drink and how less to drink. These are all things. It should not be कि जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो अल्कोहल शॉप खोल के उसको डंडे भी मारो, 70% टैक्सेस भी ले लो और उससे पैसे भी ले लो, उसको हॉस्पिटल में लगाओ, उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लगाओ, उसी पैसे से पेमेंट दो और उसको डंडे भी मारो और गालियाँ भी दो. दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल रियलिटी. एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हमारे वैल्यूज़ में बहुत सारी इम्प्रैक्टिकल चीज़ें हैं. आप सब उसके बारे में ज़रा सोचिए. एक तो ये हो गया कि अल्कोहलिक इकोनॉमी, व्हाई आई एम सेइंग दैट 1.5 मंथ्स के लॉकडाउन के बाद ऐसे मरे जा रहे थे सारे मिनिस्टर्स कि जैसे कुछ हो गया हो, अब अल्कोहल ही हमें ड्राइव आउट करेगा सिचुएशन से. 11.04 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पाए. हमारे पास कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं था. नंबर वन, दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल. थोड़ा सा डेविएट करता हूँ टॉपिक से. आई वॉन्ट टॉक अबाउट सेक्स एंड मैरिजेस इन इंडिया. हमारी वैल्यूज, हमारे जो कल्चर है वो बोलता है कि सेक्स बिफोर मैरिज इज अ क्राइम and sex after marriage is again a heinous crime. If you look at somebody or, and apart from your spouses, this is a heinous crime. That's right. You all will agree with me. The words may be offending little bit, but this is the actual reality of the life and the living organism. अब देखिए कि हमारी कंट्री, our country is the third largest country in terms of the AIDS cases. आप सब जरा सोचेंगे और मुझे बताएंगे कि थर्ड लार्जेस्ट कंट्री एड्स के मामले में कैसे हो गया. हमारी वैल्यूज तो इसको प्रोहिबिट करती है बिफोर मैरिज एंड इवन आफ्टर मैरिज, एंड इट इज लिमिटेड टू सम ऑफ द पीपल. व्हाई एड्स कम्स? इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन? इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन? देन देयर आर लॉट मेनी countries in the world which are having even more population. चाइना है, उसका पॉपुलेशन तो हमारे से ज़्यादा है. तो फिर क्यों हुआ ऐसा? क्या कमी है? वेयर वी आर नॉट टचिंग द प्रैक्टिकल रियलिटी. ऐसे ही जैसे शराब के बारे में हो रहा है वैसे उसके बारे में भी हो रहा है. वी डोंट एक्सेप्ट सम ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर. और होता क्या है, सब कुछ पर्दे के अंदर होता है और पर्दे के अंदर सब कुछ खाली रहता है. एंड देयर it gives it comes up to a dangerous proposition. Everything comes up to a dangerous. You prohibit, you be stigmatic. चोरी छुपे चीजें होती है और उसमें प्रॉब्लम किस प्रोपोजिशन में हो जाता. दैट फिगर इज, विल प्रोवाइड द फिगर ऑन द स्क्रीन. मैं कहने का मेरा मतलब यही है कि आपकी स्टेट का एक और डेटा मेरे पास है कि 11.04 ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमिक साइज में 15,000 crores per month is the excise duty from the liquor. How big it is per month? It comes around 1.80, 1,80,000 करोड़ रुपए पर ईयर होते हैं एक्साइज. एंड देयर आर हिडन चार्जेस ऑल्सो. ये तो एक्साइज ड्यूटी हो गई. फिर सेल टैक्स है, उस एजुकेशन सेस है ऑन द लिकर. इस इकोनॉमी साइज का कुछ परसेंटेज, इज क्वाइट अ बिट गुड अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी साइज विच इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द अल्कोहल. स्टेट के बारे में यदि सोचेंगे, हमारे स्टेट्स के बारे में, तो वहाँ की जितनी टोटल रेवेन्यू है उसका 15 to 25% इस द स्पेक्ट्रम वैरी करता है. इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अल्कोहल का है. बट इंडिया इज स्टिल स्टिग्मेटिक अबाउट द अल्कोहल. इट्स नॉट गोइंग टू. गालियां सुनाएंगे, बंदा पिएगा, बंदी पिएगी, छुप के पिएगी, बस में पिएगी और लोग अंधेरे में जाके पिएंगे. हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ये फैक्ट्स एंड फिगर को छोड़ देंगे. थर्ड लार्जेस्ट कंट्री एड्स के मामले में है, उसको हमें मतलब नहीं है. हम वी आर इंटैक्ट टू आवर वैल्यूज. व्हेन आवर टर्न कम्स हम भी छुप के कुछ कर लेंगे और फिर आ जाएंगे और बोलेंगे कि दिस इज नॉट परमिटेड इन आवर सोसाइटी. सिमिलरली लिकर जब सेल हो रहा है तो कुछ लोग, क्वाइट अ बिट ऑफ पीपल आर यूजिंग इट. Why not to recognize it, the practical if you say it's a problem,
then go for the resolution of the practical problem in a practical way. यदि ऐसा है तो आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए, इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए दैट द पीपल आर टेकिंग लिकर, दे शुड बी प्रोवाइडेड स्पेस टू टेक इट, दे शुड बी गिवन एजुकेशन, दे शुड बी प्रोवाइडेड विद हेल्थ केयर मेजर्स एंड द क्वांटिटी शुड बी स्ट्रिक्ट एनफ कि कितना क्वांटिटी में आप ले सकते हैं. ये टाइम आ गया है जब हर चीज़ों को प्रैक्टिकल रियलिटी में चेंज किया जाए. सोसाइटी सोशल वैल्यूज़ को थोड़ा हम लोग सोचें. आफ्टर ऑल द पीपल हैज़ मेड द वैल्यूज़ एंड द ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी. हम भी तो लोग हैं, हम भी सोच सकते हैं, हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, प्रैक्टिकली सोच सकते हैं इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हैं. एक देखो, ये क्यों इंडियन इकोनॉमी का मैं प्रभाव बताया. एक छोटा सा चीज़ लें तो पहले लड़के जब सोसाइटी में गलती करते हैं तो एक दो थप्पड़ मार के या उसको बोल के डांट के और छोड़ दिया जाता. कैन यू फील दैट लड़कियां भी जब इस तरह की गलतियां करें तो क्या होता है, नाक कट जाता है. क्यों नाक कट जाता है? व्हाट यू राइट द गुप्ता एंड डॉटर्स एंड XYZ एंड डॉटर्स ऑन द सोप. व्हाई you always write so and so and sons? The time has come to change the mindset. Be practical. Accept faults of the humankind. It's not Indian population who does faults and mistakes. If it is a mistake, let it be a mistake, but accept the reality. Devise a methodology to tackle the practical solutions. इसको हमारे ज़िंदगी में ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बनेगा. आप लोगों को पता है इंडिया is producing the 35% of the total quantum of the whiskey in the world. वो 35% विस्की प्रोड्यूस करता है इंडिया. यहाँ पे मार्केट होता है, प्रोड्यूस होता है. कहाँ जाता है 35% विस्की? जाता कहाँ है? हमारे लोग कंज्यूम करते हैं. इसका मतलब, एंड फिर भी हम लोगों के प्रति स्टिग्मेटिक होते हैं. यदि बंदा दारू पी के मिल गया, nobody likes to talk to him. He is a drunkard, stopper, and nobody respects him. हो सकता है कि वो कुछ ना कर रहा हो, घर आ रहा हो, बट द सिचुएशन इज दैट नाउ आई वॉन्ट टू शेयर विद यू दैट क्या हमारी वैल्यूज़ में चेंजेस की आवश्यकता है, क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कुछ चीज़ों को और एक्सेप्ट करके खुश रहना चाहिए. आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि व्हाट इज़ योर टेक ऑन द इशूज़. इंडियन इकोनॉमी अल्कोहलिक तो हो ही गई है, आपने देखा है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.